बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं, छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कौन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। आइंदा कशीदगी खित्ते और उसके बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। अजरी दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत शिकस्त के बाद रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसियों के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितना हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रोक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का भी खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगी और हक खुदरादियत से महरूम रहेंगे। दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशें काबिले तहसीन हैं। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland.
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान मजीद की सूरह सफ की आयत नंबर 4 का हवाला देते हुए कहा कि बेशक अल्लाह तो उनको पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। फील्ड मार्शल ने जनवरी 1948 के कायदे आज़म की तारीख़ी अरशादात का हवाला भी दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, मेरे पैगाम का वसी तर मकसद एक यकीन दहानी है कि पाकिस्तान के बढ़ते मुकाम को मद्देनजर रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना है। Allah indeed loves those who fight in His way in ranks as though they were a solid wall. As per Kai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice and die for the state, so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world." Victory is not achieved by rhetoric, but by training, character, and the courage to stand firm and unyielding in the face of odds and challenges. Do not become tools and victims of information disorder. The broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से आज अहम खिताब किया गया, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ा अहम खिताब किया गया और बड़े क्लियर 3 से 4 मैसेजेस भी दिए गए। आप इस खिताब को और फिर इस मौके को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि पीएमए लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट ट्रेड की तकरीब से खिताब किया गया, ये कितना अहम है? बहुत शुक्रिया। देखिए, फील्ड मार्शल साहब ने इंतहाई एक कॉम्प्रिहेंसिव आज स्पीच थी और इसमें बेसिकली तो पैगाम दिया गया है इंडियन फौज जो है वो आए दिन प्रोवोकेटिव, जिंगोइस्टिक, मिलिट्रिस्टिक स्टेटमेंट्स देती रहती है और उनको ये बताया गया है कि पहले ही आप जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो आप एक मॉरल एंड जस्ट फोर्स नहीं है, आपका शुमार उन फोर्सेस में होता है जो हैं तो कन्वेंशनल फौज लेकिन दहशतगर्दी को यूज करते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। एक तो ये बात है। दूसरी आम बात ये है कि इंडिया बार बार शायद ये चीज समझता है कि उनकी जो टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो उनको बताया गया है कि आपको ये जो ज्योग्राफिक एडवांटेज है ये नहीं होने वाला। सो ये जहन में रखें कि ये अगर हम आपको ये एडवांटेज नहीं देने देंगे, और खास तौर पे रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी चीफ और इंडिया के जो बाकी जो जनरल साहबान हैं वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो उनको भी ये पैगाम भारत की मिलिट्री लीडरशिप को और डिफेंस लीडरशिप को ये दिया गया है कि देखें ये न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है। अगर आप समझते हैं कि इसमें लिमिटेड जंग हो सकती है या कन्वेंशनल जंग हो सकती है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी कि हम कन्वेंशनल जंग अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग जो है वो कर सकते हैं, तो ये पैगाम दिया गया है कि ये मुमकिन नहीं है और ये गलती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंडियन मिलिट्री को ये कहा गया है कि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो सियासी फायदे हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हालात खराब करके, तो इसलिए इंडियन मिलिट्री बार बार बोलती है। तो बेसिकली पैगाम दिया गया है कि आप ये गलती ना करें, अगर आपको आपके सियासतदान उकसा रहे हैं तो ये गलती मत करें। और खास तौर पे देखें पाकिस्तान ने देखें बहुत क्लैरिटी है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप से जो क्लैरिटी मैं समझता हूँ आज हम 2025 में आई, ये मुझे पहले कभी नजर नहीं आई कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है इस हवाले से, और खास तौर पे वहाँ पे जो अफगानिस्तान की लीडरशिप को बताया गया है कि आपके यहाँ वहाँ पे जो सेंचुरीज हैं वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो, लॉलेसनेस हो, यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले हो और काबुल, कंधार और पख्तिका के अंदर बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही हो और आप कहें जी दहशतगर्द तो पाकिस्तान में है। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी बहुत क्लियर जो है वो पैगाम जो है वो दिया गया है। और खास तौर पर देखें ये जो अफगान तालिबान ने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि कोई अफगान तालिबान की एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन आलम इस्लाम में कहीं नहीं है। मतलब दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं आपको ऐसी इनकी कोई किताब नहीं मिलेगी जो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मदरसे में, किसी जगह पे पढ़ाई जा सके जी ये अफगान तालिबान का एकेडमिक व्यू है, ये अफगान तालिबान की एकेडमिक कंट्रीब्यूशन या इंटेलेक्चुअल
कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस मैथोलॉजी में या इस्लामिक मैथोलॉजी के अंदर, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली जो फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की है अपनी अकल दिमाग और जितना इनका छोटा सा दिमाग है उस हिसाब से की है। इनको बेसिकली समझ ही नहीं है कि इस्लाम जो है वो इतना आला और बड़ा मजहब है और दीन है, और ये अपनी मर्जी से चीजें करते रहे। तो और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी बात थी कि हम इस खित्ते के अंदर रीजनल स्टेबलाइजर हैं। हम ना तो प्रोवोकेट करते हैं, ना इंडिया जो है वो दुनिया के बड़े मुल्कों को कहता है कि जी हम यहाँ पे नेट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। पाकिस्तान कह रहा है जी हम नेट रीजनल स्टेबलाइजर हैं, जिसने दाएं बाएं हरकत करने की कोशिश की। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, हम चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ताकत रखते हैं। सो अगर हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम नेट रीजनल स्टेबलाइजर हैं, तो आपने देख लिया ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो बिहेवियर इंडिया की तरफ से वो बदल गया था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो इंडिया को समझा कि ये पता नहीं बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे, वो खत्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी बड़ी सीज फायर हुई है, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप का वहां पे तस्करा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल साहब का वहां जिक्र किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मौका दिया वो बात करें। तो ये दुनिया के इतना बड़ा मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव हुआ है, और इस सारे मामले में अगर हम भारत की बात करें तो यकीनी तौर पर उसका जो इमेज है वो एक नेगेटिव ही इमेज बिल्ड हो चुका है इस सारी जो सूरत हाल के बाद। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त अब दुनिया न्यूज़ को दे रहे थे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स की ग्रेजुएशन। ISPR के मुताबिक कोर्सेज में 71वें इंटीग्रेटेड, 26वीं लेडी कैडेट और 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स शामिल। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। एजाजी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर वहीर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टिकराज को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन मेडल जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हुसैन को दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैंप कोर्स के अंडर ऑफिसर शहीर अली को दिया गया। कमांडेंट ओवरसीज मेडल 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की कोर्स स्पोर्ट्स सर्जेंट मोस्ट जन्नत मोआ को दिया गया। कमांडेंट कैन 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स के सैयद अब्दुल हादी और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की हादिया फयाज को दिए गए। दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी ग्रेजुएट पास आउट होने वालों में शामिल। इराक, फलस्तीन, कतर, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यमन, बांग्लादेश, माली और नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स भी शरीक हुए। एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट की पासिंग आउट परेड हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। परेड का मुआयना किया, बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा।